Hello everyone, welcome back to The Lion. Please join to our Telegram channel at The Lion at THELAWION for more updates. We post, everyday videos there, and if you wish, we can provide you with the PPT of the presentations which we are seeing in these videos. So please get updated with our Telegram channel. Please get connected with it. Chalo, let's get started. सो एज ऑफ नाउ हिंदू जॉइंट फैमिली सिस्टम में हम लोगों ने क्या क्या देखा. वी हैव गॉन थ्रू द स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ. वी हैव स्टडीड थरोली व्हाट इज मिताक्षरा, व्हाट इज दया भागा. देन वी सॉ द कोपार्सनरी, then we saw the karta, his duties, his powers, and now onwards we have to understand a very fundamental aspect of the Hindu joint family, that is partition. But before understanding the partition, one must understand the types of properties under Hindu joint family. So today's topic is properties under Hindu joint family. So today and tomorrow we'll be having, probably, let's see, we'll have session on property, and then we'll go for the partition under Hindu joint family. So we know schools of Hindu law. We are done with Mitakshara and Daya Bhaga. Now let's understand property under Mitakshara. So there are two types of properties under Mitakshara. One is coparcenary or joint Hindu family property, or second one is separate property. So we have to understand what is coparcenary property, also called as joint family property, and what is separate property. And under Daya Bhaga, there is only one type of property which is called as obstructed or and separate property. Okay, so what it is, let's see. So first of all, we'll start with property under Mitakshara. So there are two types of properties under Mitakshara. One is coparcenary property and second one is a separate property. So under coparcenary property, there are two types. One is unobstructed property, also called as ancestral property, or called as apratibandha dhyaya. Dhyaya means to give. It's a Sanskrit term. It is spelled as D-A-Y-A. Okay, so dhyaya means to give समथिंग. ठीक है. सो अप्रतिबंध ध्याय, जिसपे प्रतिबंध नहीं है ऐसी देने वाली प्रॉपर्टी, दैट इज अनऑब्स्ट्रक्टेड. एंड सेकंड वन इज ऑब्स्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी विच इज सप्रतिबंध ध्याय. सो डिटेल में क्या है आगे देखेंगे. चलो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द कोपार्सनरी प्रॉपर्टी में फर्स्ट सब प्रॉपर्टी, दैट इज अनऑब्स्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी, और ऑल्सो कॉल्ड एज एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी और अप्रतिबंध ध्याय. सो कोपार्सनरी प्रॉपर्टी में या फिर जॉइंट फैमिली में हमने देखा कि देर आर थ्री बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ ए जॉइंट फैमिली, दैट इज जॉइंट प्रॉपर्टी, देन दे शुड ईट टुगेदर एंड दे शुड प्रे टुगेदर. दीज आर द थ्री फंडामेंटल्स ऑफ अ हिंदू जॉइंट फैमिली. सो विल कंसिडर हम साथ साथ हैं में हमारे जो बाबूजी है वो रामगढ़ से बिलोंग करते, राइट. रामपुर से बिलोंग करते. तो रामपुर में जो उनकी हवेली है वो पुरखों से चली आ रही है. सो दैट विल बी कॉल्ड एज अ जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी. ठीक है, डिफरेंस समझना है. द प्रॉपर्टी इन रामपुर इज जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी और कोपार्सनरी प्रॉपर्टी. क्यों? बिकॉज दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी विच हैज बीन शोन इन द फिगर, ये प्रॉपर्टी बिलोंग टू हिम फ्रॉम हिज फादर्स, फोर फादर्स, ग्रैंडफादर्स एंड अबव ऑल. Okay, so it is not earned by him. So this particular type of property is a joint family property. So consider this property. Now with the help of this example we'll understand what is unobstructed. So consider the Ramgarh की हवेली or that property which I have shown you right now. So वो property का अभी property holder कौन है? बाबूजी. So बाबूजी is right now the property holder of the रामगढ़ की हवेली. एंड अभी कोपार्सनर कौन है? हम लोगों ने देखा कि कोपार्सनरी कौन है बाबूजी के, अप टू 4 लीनेज या फिर प्रॉपर्टी होल्डर से लेके 3 लीनेज तक. तो अभी तो हमें इतना ही कंसिडर करना है कि बाबूजी को सिर्फ लड़के और लड़कियां हैं, सन्स एंड डॉटर्स. सो दे आर द कोपार्सनर्स राइट नाउ. सो बड़ा बेटा, देन सेकेंड नंबर, देन उनकी बेटी और तीसरा लड़का या फिर चौथा. तो कंसिडर ये जो रामगढ़ की हवेली है,
इसकी प्राइस है 100 करोड़. ओके, सो हु आर द co-partners राइट नाउ इनटू दिस प्रॉपर्टी? देयर आर 5 co-partners. कौन कौन है? बाबूजी है, ठीक है, उनका बड़ा बेटा है, देन सलमान खान, उनकी बेटी और सैफ अली खान. ऐसे 5 लोग हैं. सो एवरीवन विल गेट 1/5 ऑफ द प्रॉपर्टी, है ना. सो 100 करोड़ विल बी डिवाइडेड इनटू 5, सो देयर शेयर विल बी 1/5. सो दैट इज 20 करोड़, 20 करोड़, 20 करोड़ ईच. ठीक है. अभी देखो यहां पे उनकी जो बेटी है उनको मैंने रेड बॉर्डर दिखा है बिकॉज अभी मैं यहां पे ये एज्यूम कर रहा हूं कि उनकी शादी नहीं हुई है. तो अगर उनकी शादी नहीं हुई है, शी इज अ मेंबर ऑफ दिस जॉइंट हिंदू फैमिली एंड आफ्टर द 2005 अमेंडमेंट शी इज ऑल्सो अ equal owner of the property, that is co-partners. Hence she will get that 20 crore as share from this particular property of रामगढ़ की हवेली. ठीक है. So the property in which everyone is a co-owner and everyone is a equal co-partner by birth, ठीक है, that property is called as unobstructed property or ancestral property. यहाँ पे जो एंसेस्ट्रल शब्द है दैट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ये पर्टिकुलर 20 करोड़ जो भी शेयर इन लोगों को मिल रहा है वो उनके पिताजी से मिल रहा है और वो जो पिताजी की प्रॉपर्टी है वो बहुत सालों से उनके पास है या फिर वो उनके पुरखों की अमानत है. ठीक है. इट इज नॉट बॉट बाय बाबूजी. ये बाबूजी ने निर्माण की हुई प्रॉपर्टी नहीं है, ये उनके पिताजी या उनके पिताजी के पिताजी ने इनको ये प्रॉपर्टी दी है. ठीक है. सो द प्रॉपर्टी इन विच एवरी बॉर्न मेंबर अप टू 4 lineage is a co-owner or co-partner is called as unobstructed property. ठीक है. तो और एक एग्जांपल देखते हैं कि अभी पार्टीशन हुआ नहीं है, ये जो हमने 20 करोड़ के कैलकुलेशन देखे वो नहीं हुए हैं. हाँ, एंड कंसिडर करो कि ये रामगढ़ की हवेली है 100 करोड़ की और उनके पहले बेटे को बेटा हो गया, देन सलमान खान को बेटा हो गया, देन उनकी जो बेटी है उसकी मैरिज नहीं हुए ऐसे कंसिडर कर रहे हैं हम लोग, और सैफ अली खान को बेटा हो गया. सो एज एंड व्हेन ये 3 लड़के पैदा होते हैं नए वाले, तो बाय बर्थ दे बिकम अ co-partner ऑफ द प्रॉपर्टी. ऑन विच प्रॉपर्टी? ऑन दिस रामगढ़ की हवेली, है ना. सो राइट नाउ देयर आर 8 शेयर्स हैज टू बी डन. कौन से 8 शेयर? बाबूजी का खुद का, देन उनके 5 बेटे, तो ये उनके 4 बेटे, तो ये 5 हो गए, और उनके बेटे के बेटे ये 3 हो गए. तो ऐसे 8 शेयर में ये रामगढ़ की हवेली डिवाइड होगी. सो उसकी प्रॉपर्टी की वर्थ हमने क्या देखी है? 100 करोड़. सो डिवाइडेड बाय 8 करने के बाद वो आती है 12.5 करोड़ ईच. सो अभी बाबूजी का जो शेयर है वो है 12.5 करोड़. सो सेम अप्लाइज टू एवरीवन. नाउ एवरीवन विल बी अ co-partner ऑफ 1/8 प्रॉपर्टी एंड द अमाउंट इज 12.5 करोड़ ईच. ठीक है. सो ये कैलकुलेशंस हम लोग कब तक कर सकते हैं? हम लोगों ने देखा कि हिंदू जॉइंट फैमिली में co-partner कौन कौन बन सकते हैं? अप टू 4 lineage, या फिर अभी जो प्रॉपर्टी है होल्डर है हमारे बाबूजी, उनके आगे 3 lineage तक ये कैलकुलेशंस हो सकते हैं. ठीक है. सो दिस इज द अनऑब्स्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी एंड द कैलकुलेशंस आर लिमिटेड अप टू 4 degrees. ठीक है, कंसिडरिंग द प्रॉपर्टी होल्डर. ठीक है. तो दिस इज द अनऑब्स्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी. Why it is called as unobstructed? Because we have seen under the Mitakshara, succession is by birth. So as and when a person borns into a family, he is a co-partner, and as soon as he is a co-partner, he gets his due share into the property of that Hindu joint family. That's why it is called as unobstructed, which cannot be obstructed. ठीक है. So that is unobstructed. अप्रतिबद्ध न्याय. प्रतिबंध करना मतलब टू स्टॉप गिविंग द राइट, बट या इस केस में देयर इज नो स्टॉपिंग समवन, है ना. सो इसलिए इट इज अप्रतिबंध न्याय. ठीक है. सो
I hope you have understood it. Let's move on to the next property. So कोपार्सनरी प्रॉपर्टी में अनऑब्स्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी या फिर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी क्या है हम लोगों ने देख लिया, ठीक है, वी आर डन विद इट. नाउ विल गो फॉर द ऑब्स्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी और सप्रतिबंधाध्याय. ठीक है, तो चलो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में क्या क्या आता है. हम लोगों ने देखा कि रामगढ़ की हवेली विल बी देयर, ठीक है, और उनके जो शेयर है इन 4 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, ठीक है. और 5वें कोपार्टनर कौन है, बाबूजी, तो इसलिए 20 करोड़ ईच सबका शेयर हो गया, ठीक है. तो अभी ये रामगढ़ की हवेली का जो शेयर है ये इन सब लोगों को मिल गया. तो अभी ये 4 लड़के बाबूजी के अभी ABCDEFGHI वो जो गाना है ना, वो गाना गाते गाते वो कहीं पे जा रहे हैं, ठीक है. और जाते जाते रास्ते में इन लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है. जस्ट अ स्टोरी, या फिर हम साथ साथ का सेकंड पार्ट बन जाएगा तो देख लेना, स्टोरी ऐसी हो सकती है ना. तो ये एक्सीडेंट में 3 पीपल डाई. ओके, सैफ अली खान मर जाते हैं, उनके सबसे बड़े भैया है जो वो मर जाते हैं, और बाबूजी की लड़की, ये 3 लोग मर जाते हैं, ठीक है. सो व्हाट विल हैपन नाउ, सलमान खान विल he already have his 20 करोड़ एज अ अनऑब्स्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी, ठीक है. तो अभी ऐसे कंसिडर करना है कि इन चारों का कोई भी बेटा या बेटी नहीं है, ठीक है, और इनका मैरिज भी नहीं हुआ है. तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ये जो 20 करोड़ इन 3 लोगों के जो अभी डिजीज्ड है, ठीक है, या फिर मर गए हैं एक्सीडेंट में, जो डेथ हो गई है जिनकी, तो इनका जो शेयर है वो सब शेयर किसको जाएगा, हमारे सलमान खान भाई साहब को जाएगा. तो सलमान खान भाई साहब के पास अभी 20 करोड़ उनका अनऑब्स्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है एंड 60 करोड़ उनकी ऑब्स्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है. सो व्हाई इट इज कॉल्ड एज ऑब्स्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी. देखो अभी ये 20 करोड़ शेयर का ही पार्ट है, फिर भी इट इज कॉल्ड एज ऑब्स्ट्रक्टेड. व्हाई, अगले स्लाइड में देखते हैं. सो व्हाई इट इज कॉल्ड एज ऑब्स्ट्रक्टेड और सप्रतिबंधाध्याय, क्योंकि यहाँ पे जो 20 करोड़ है वो तो अनऑब्स्ट्रक्टेडली उनका शेयर है, बाय एज अ कोपार्सनरी वो उनको बाय बर्थ मिल गया है. और ये जो 60 करोड़ है ये उनको उनके भाइयों और बहनों के तरफ से मिला है, ठीक है. सो ये जो 60 करोड़ है इनके ऊपर उनका ये जो बच्चा है या फिर जितने भी उनके बच्चे होंगे वो कैन नॉट क्लेम द राइट ऑन दिस 60 करोड़ बाय बर्थ. ओके, फर्क समझना है. ये जो 20 करोड़ है जो अनऑब्स्ट्रक्टेड मिले हैं सलमान खान जी को, इसके ऊपर ये जो 4 बच्चे हैं वो क्लेम कर सकते हैं बाय बर्थ बिकॉज इट इज अनऑब्स्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी. बट ये जो 60 करोड़ है इसके ऊपर ये 4 बच्चे क्लेम नहीं कर सकते बिकॉज ये जो 60 करोड़ उनको मिले हैं ये ऑब्स्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है. सो ऑब्स्ट्रक्टेड का मतलब ये है इनको ये नहीं मिल सकता. तो ऑब्स्ट्रक्टेड का मतलब ये है, या व्हाई इट इज ऑब्स्ट्रक्टेड, बिकॉज अभी जो प्रॉपर्टी होल्डर है 60 करोड़ के वो है सलमान खान, और जब तक वो नहीं मरते तब तक आगे वाला जो उनके बेटे हैं वो ये प्रॉपर्टी क्लेम नहीं कर सकते बाय बर्थ. सो देयर इज ऑब्स्ट्रक्शन इन द फॉर्म ऑफ अ प्रॉपर्टी होल्डर. तो अभी प्रॉपर्टी होल्डर सलमान खान है, वो इन प्रॉपर्टी के बीच में और इन बच्चों के बीच में ऑब्स्ट्रक्शन बन के खड़े हैं. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ऑब्स्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी और सप्रतिबंधाध्याय. सो व्हाट इज सप्रतिबंध? प्रतिबंध मीन्स टू स्टॉप. So sapratibandha means it is a Sanskrit term. So sapratibandha means there is a condition which stops this property from transferring from the property holder to his sons or daughters. ठीक है? So that's why it is called as a obstructed property. So in what situation a property gained by a person will be called as a obstructed property? There are 4 to 5 cases under which a property acquired by a person or a property devolved upon a person will be a obstructed property. तो first है when a property devolves from a brother to brother. ठीक है, तो अभी इस केस में क्या हुआ,
सलमान खान के भाइयों और बहनों की प्रॉपर्टी उनके पास आ गई, ठीक है, उनके पिताजी की प्रॉपर्टी नहीं आई है। अगर पिताजी की प्रॉपर्टी उनके पास आती तो उसको हम अनऑब्स्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक है। या फिर सलमान खान के फादर, ग्रैंडफादर और ग्रेट ग्रैंडफादर, इन तीनों में से किसी की भी प्रॉपर्टी सलमान खान के पास आती तो वो अनऑब्स्ट्रक्टेड होती, ठीक है। बट अभी इस एग्जाम्पल में ये जो प्रॉपर्टी है उनके भाइयों की तरफ से सलमान खान के पास आई है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इट इज ऑब्स्ट्रक्टेड, ठीक है, फर्स्ट केस। सेकेंड केस, व्हेन द प्रॉपर्टी इज डिवॉल्व्ड अपॉन पेरेंट्स, मतलब ये है कि अगर वो एक्सीडेंट में चारों भी बच्चे मर जाते इंक्लूडिंग सलमान खान, तो ये जो 80 करोड़ रुपए होते वो पूरे बाबूजी के पास चले जाते, ठीक है। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम बाबूजी के पास जो 20 करोड़ है वो अनऑब्स्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी हो गई, और जो 80 करोड़ है वो ऑब्स्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। थर्ड केस है नेफ्यूज। तो समझ सकते हैं कि किसी का भी लड़का हो और वो 4 मर गए तो डेफिनेटली उनके बच्चों के पास ये प्रॉपर्टी जाने वाली है, या फिर बाबूजी भी उनके साथ थे और वो मर गए, ठीक है। तो अभी जो बाबूजी के जो भी भाई होंगे उनके पास ये सब प्रॉपर्टी चली जाएगी। सो दिस 100 करोड़ इंक्लूडिंग अभी बाबूजी की प्रॉपर्टी बिकम्स अ ऑब्स्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी टू द अंकल ऑफ सलमान खान, ठीक है। सो दीज आर द केसेस अंडर विच अ प्रॉपर्टी बिकम्स ऑब्स्ट्रक्टेड, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, थैंक यू सो मच।